ذرا اونچی آواز میں اس مضمون کو پڑھ لیں. جی. کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ ہم نے اب تک دو ایک ساتھ کے طور پر گیونگ کے حوالے سے چند ایک باتیں خدا کے کلام کے طالب علم ہونے کے ناطے خدا کے کلام کی روشنی میں سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے. پچھلی بار میں نے ایک سوال آپ کے لیے چھوڑا تھا اور میں نے کہا تھا کہ جب ہم تیسری قسط کے طور پر آگے بڑھیں گے تو آپ مہربانی سے اس سوال کو اپنے ساتھ اور اپنے اندر رکھیے گا. سوال یہ تھا کہ مجھے اور آپ کو دینا مشکل کیوں لگتا ہے؟ خدا کے لوگوں کو دینا جو ہے وہ مشکل کیوں لگتا ہے، جبکہ ہم نے دو ایک ساتھ کے طور پر اب تک تفصیل کے ساتھ یہ بات سیکھ لی ہے، سمجھ لی ہے کہ جس نے دینا نہیں سیکھا اس نے رب خداوند سے لینا بھی نہیں سیکھا. اور پھر کلام کی آواز بار بار ان دنوں میں گونج رہی ہے کہ دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے. اب دینا مشکل کب ہوتا ہے؟ میری دانش کے مطابق یہ اس وقت مشکل ہوتا ہے جب ہم کسی بھی چیز کو اپنا سمجھ لیتے ہیں. جب ہم کسی بھی چیز کو اپنا سمجھ لیتے ہیں تو پھر اس چیز کا دینا ہمیں مشکل لگتا ہے. حقیقت کیا ہے اور خدا کے کلام کی روشنی میں خدا کے کلام کی تعلیم کیا ہے کہ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے نہ ہم دنیا سے کچھ لے جا سکتے ہیں. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے رب خداوند کا ہے. اور ہم نے پچھلے پیغامات کی روشنی میں یہ سیکھا ہے کہ دینا اصل میں خدا کو ریٹرن کرنا. جب سب کچھ ہے اس کا، جب دیا ہوا اس کا ہے، تو پھر ہمیں ریٹرن کرنے میں اتنی مشکل کیوں ہے؟ ہم اتنے بے بس اور اتنے مجبور کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہمارے ہاتھ کیوں رک جاتے ہیں؟ ہمارے والیٹس جو ہیں، ہماری تجوریاں جو ہیں وہ بند کیوں رہ جاتی ہیں؟ اس لیے کہ ہم اس بات کو اب تک سمجھ ہی نہیں پائے کہ جو کچھ ہے وہ سب کچھ تو خداوند کا ہے. خدا کا ایک خادم کراچی میں نے اسے اپنی کلیسیا میں بلایا. میں نے ان سے گزارش کی کہ وہ گیونگ پر کچھ بات کریں، کلیسیا کو دینا سکھائیں. سعید آباد پیرش میں وہ چرچ میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے لوگوں سے پیغام سے پہلے کچھ سوالات کیے. انہوں نے آلٹر پر کھڑے ہو کر کہا، آپ میں سے کتنے ہیں جن کے اپنے گھر ہیں؟ تو کچھ لوگوں کے ہاتھ کھڑے ہوئے. آپ لوگوں میں سے کتنے ہیں جن کی اپنی گاڑیاں ہیں؟ بہت سارے ہاتھ کھڑے ہوئے. چلیں 4 ویل نہ صحیح، 2 ویل ہی صحیح. آپ میں سے کتنے ہیں جن کے بینک اکاؤنٹس ہیں، اپنے بینک اکاؤنٹس ہیں؟ بہت سارے ہاتھ کھڑے ہوئے. آپ میں سے کتنے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گھر ان کا اپنا ہے؟ 100% گھر. اس بات کو لے کر 100% لوگوں نے اپنے ہاتھ کھڑے. بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ ہمارے باپ کا گھر ہے، یہ ہمارا اپنا ہے. اچھا، پادری صاحب نے تھوڑا سا کھسکنا شروع کر دیا اور وہ بالکل سائڈ پر ہو گئے. کہنے لگے، بھائی صاحب آئی ایم ویری سوری، میں اصل میں غلط کلیسیا میں آ گیا، مجھے معاف کیجیے گا. آپ عبادت کو جاری رکھیں، میں آج پیغام ڈیلیور نہیں کروں گا. اچھا، میرے لیے بڑا شاکنگ تھا. تو میں نے خدا کے اس خادم سے مؤدبانہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا کہ بھائی صاحب کوئی گستاخی ہو گئی. کہنے لگے، نہیں، میں غلط کلیسیا میں آ گیا ہوں. جب میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ میں سے کتنوں کے اپنے گھر ہیں، تو
टाइम नीचे से आवाज आनी चाहिए थी, पादरी साहब हम में से किसी का कोई घर नहीं, हमारा घर असल में हमारे खुदा का है। हमारी तिजोरी, हमारा बैंक बैलेंस, हमारे वॉलेट्स, हमारी गाड़ियां, ये सब कुछ खुदावन के हैं। अच्छा ये तो सब इनका है, तो फिर मैं तो गलत कलीसिया में। अब इनको तो मैं नहीं सिखा सकता, क्योंकि इन्होंने तो अब तक ये सीखा ही नहीं कि जो कुछ इनके पास है वो सब कुछ पूरे तौर पर तो खुदावन का है। खैर वो आए और फिर उन्होंने आकर बड़ा ही खूबसूरत पैगाम दिया, और उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट जो है वो बाद में निकल कर सामने आया। देना उस वक्त मुश्किल होता है जब हम ये समझने लगते हैं कि ये तो हमारी अपनी जरूरत के लिए भी काफी नहीं। उस वक्त देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देना उस वक्त बड़ा मुश्किल हो जाता है जब हम स्कीम लड़ाने में लग जाते हैं कि चलो काके दे कोई गल नहीं, अगले महीने दी छड़ा खुदा में तो पता ही है। और आप यकीन माने कि वो अगला महीना कभी नहीं आता, कभी भी नहीं आता। अच्छा जो लोग कर्ज लेते हैं, मैं उनसे अक्सर ये पूछता हूं, आप सैलरी वाले हैं? जी पादरी साहब, आपके तो महदूद वसाइल हैं, आपने लोन ले लिया, इस लोन को उतारेंगे कैसे? ऊपर से कोई पैसा आएगा? ये कोई अजाफी रकम आएगी जो आप लिया हुआ है वो वापस करेंगे? तो फिर लोग खामोश हो जाते हैं। और यही वजह है कि लोग लेने के बाद वापस नहीं करते। मैं हाथ जोड़कर कहूंगा, मेरे पास लिस्ट मौजूद है, हमारी कलीसिया में 26 लोगों ने हमसे लोन लिया और ये कहा कि हमारी मदद करें, हम ये पैसा आपको वापस करेंगे। मैं खुदा का कलाम हाथ में उठाकर कहता हूं, किसी एक ने भी वापस नहीं किया, किसी एक ने भी वापस नहीं किया। देना लोगों को क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि वो टाल मटोल की पॉलिसी पर चले जाते हैं। चले अब नहीं अगली बार, चले अगली बार नहीं उससे अगली बार, चले उससे अगली बार दे देंगे, और यूं साल और महीने गुजर जाते हैं और फिर हम भी भूल जाते हैं, वो भी भूल जाते हैं। मैं आज खुदा का खादिम होने के नाते आपसे कहूंगा, आप दुबई में बैठे हुए हैं, आप अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाएं। मैं बहुत खुश हूंगा क्योंकि मैं आपका रूहानी बाप हूं। मुझे खुशी होगी आपके घरों में जाकर, जब मैं आपके घरों में आपके लिविंग स्टैंडर्ड में एक तब्दीली और फिर तब्दीली और फिर तब्दीली देखूंगा। लेकिन मैं इसके साथ साथ आपको ये भी कहूंगा, रूहानी बाप होने के नाते, कि ना सिर्फ अपने रूहानी, ना सिर्फ अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाएं, बल्कि अपने गिविंग स्टैंडर्ड को भी बढ़ाएं। एक बात मैं बड़ी अहम करने लगा, सोचिएगा इसको। आप में से कितने हैं जिनकी सैलरीज पर हर साल इंक्रीमेंट लगता है? हाथ खड़ा करेंगे। किसी का नहीं लगता, दुबई में नहीं लगता, 5 दिरहम 10 दिरहम भी नहीं बढ़ते। नहीं सच्ची से बताएं मुझे, फिर मैं शेख मोहम्मद साहब को लेटर लिखूं, उनसे यूं करके बात करूं, नहीं बढ़ता 5 दिरहम 10 दिरहम भी नहीं, तो अफसोस कहूंगा। नहीं फिर आप ठीक है, क्योंकि मैं ये कहने वाला था कि अगर 5, 10 दिरहम, 20 दिरहम, 50 दिरहम आपकी सैलरी में हर साल बढ़ते हैं, तो फिर उतने ही आपके हदिये में भी बढ़ जाने चाहिए, उतने ही आपके हदिये में भी बढ़ जाने चाहिए। देखें, जिस तरह हम साल ब साल बढ़ते हैं, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, अपने हदिये में 1 दिरहम बढ़ाएं, लेकिन बढ़ाएं जरूर। हमारे बुजुर्ग कितने सियाने हैं,
वो शादी ब्याह के मौका पर जब अपनी बेटियों को और अपने रिश्तेदारों को रुपया पैसा देते हैं तो 101 रुपया करके देते हैं, वो 100 नहीं देते, 101 करके। मेरी ख्वाहिश ये है कि काश के हमारा ये छोटा सा गल्ला भी सिर्फ 100 नहीं, अब 101 करके दे, बढ़ा कर खुदावंद को दे, और फिर देखें कि खुदा उसके खाने में आपको कितनी कितनी बरकत नहीं देता। अपने लिविंग स्टैंडर्ड के साथ साथ अपने गिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाएं। मैं गारंटी देता हूं, बाद में मुझसे साइन कहीं ले लें, तजर्बा करके देख लें, अगर 2 से 3 महीनों के दौरान आपके हालात, आपकी हालत ना बदल जाए, मैं पादरी पुना छोड़ दूंगा। मैं दलेरी के साथ ये बात करता हूं, लेकिन देने वाला दिल से दे, खुशी से दे और दरेक करके ना दे, और फिर देखें खुदा किस तरह से देता है। आगे बढ़ेंगे जल्दी की। क्या ही जबरदस्त थी वो खातून जिसके अपने पास कुछ नहीं था, लेकिन जो कुछ उसके पास था सिर्फ 2 दमड़ियों की सूरत ही में उसने वो खुदा को दे दिया। और फिर इस अजीम किताब में उस खातून का जिक्र कर दिया गया, और मेरे यस्सु ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट उस खातून के बारे में दी और कहा कि इसने सबसे ज्यादा दिया। अच्छा, एक बात फिर से हाथ जोड़कर कहूंगा, ये मेरा तजर्बा है, मुमकिन है कि आपका तजर्बा कुछ मुख्तलिफ हो। अच्छा, जितने छोटे लोग होते हैं, जितने छोटे लोग होते हैं उनका हदिया उतना ज्यादा होता है, जितने बड़े लोग होते हैं उनका हदिया उतना कम होता है, क्योंकि उन्हें देना और ज्यादा मुश्किल लगता है। तो फिर से कहूंगा कि जिसने देना नहीं सीखा उसने लेना भी नहीं सीखा। अगर आप नाम चाहते हैं उस बेवा की तरह, ये चाहते हैं कि खुदावंद आपको भी ब्लेस करे और आपका नाम, आपकी शनाख्त बने, तो फिर बड़ा जरूरी है कि आप उसकी तरह दें। हालांकि वो अपने कंधे उछाल कर ये कह सकती थी कि सॉरी, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ 2 दमड़ियां हैं, और ये मैं समझती हूं कि शायद मेरे अपने लिए भी काफी नहीं है। उस बेवा के बारे में क्या कहें, जिसके पास खुदा का बंदा चला गया और कहा कि पानी पिला, और पानी के बाद रोटी की डिमांड कर दी। अब उसने कहा कि देख भाई, मेरे पास और मेरे बेटे के पास हम तो लकड़ियां चुन रहे हैं, सिर्फ 1 वक्त का खाना है, और इस खाने को खाने के बाद हमने मर जाना। बाइबल में यही लिखा, हमारे पास गुंजाइश ही नहीं है। वो कहा बीबी पहले मेरे लिए ले आना, पहले इधर तो लाना। और जब वो बीबी खुदा के खादिम के लिए वो खाना लेकर आई तो खुदा ने इतना ब्लेस किया कि लिखा है कि कहत के उन सारे सालों में उसके घर से खुराक कम नहीं, उसके घर से खुराक कम नहीं। आज का बयान जो है इसमें खुदा एक सवाल कर रहा है कि क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा। अच्छा, बहुत सख्त लफ्ज है। अगर कोई मुझे कहे, मैं आपको छोड़ देता हूं, कोई मुझे कहे कि पादरी विलियम ठाके, उफ, मर जाने का मुकाम है, मर जाने का मुकाम है। क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? कभी आपने गौर किया कि इस जुमले का मतलब क्या है? अच्छा, मैंने मुख्तलिफ ट्रांसलेशंस देखे, मैंने खुदा के खादिमों को पढ़ा, और मैं फिर इस नतीजे पर पहुंचा कि असल में खुदा यहां ये कह रहा है कि देखो भाई, तुम ठग हो। किस सेंस में? इस सेंस में कि मेरी तरफ से तो तुम्हें पूरा पूरा मिल रहा है, लेकिन तुम्हारी तरफ से इतना भी रिटर्न नहीं हो रहा। सेंस ये है, होना तो ये चाहिए था कि जब तुमने हाथ रोक लिया है तो फिर मैं भी हाथ रोक लेता। जिस मंथ तुम मेरा शेयर मुझे नहीं देते क्योंकि मैं तुम्हारा बिजनेस पार्टनर हूं। अच्छा, कुछ लोग ये नहीं समझते कि आप जो काम काज कर रहे हैं
उसमें आपका खुदा आपका बिजनेस पार्टनर है। और बाइबल मुकद्दस चीख कर कहती है कि बाइबल का खुदा ही असल में हमें रोजी और रोटी कमाने की कुव्वत और ताकत देता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कानून फ्री में मिल जाती है, ये सांस आपको फ्री में मिल जाती है, ये जितने विटामिन है आपको फ्री में मिल जाते हैं, खुदा फ्री में दे रहा है। और जब वो फ्री में दे रहा है तो फिर हमें तो रिटर्न करते हुए कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, वो तो सब कुछ दे रहा है। और असल में खुदा मलाकी के दौर के लोगों से यही शिकायत कर रहा है कि तुम्हारा तरीका कार ठीक नहीं, लेने की बात आती है तो तुम लेते हो, उसी मिकदार में लेते हो, और तुम्हारी डिमांड बढ़ती चली जाती है कि अब हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। लेकिन जब देने की बात आती है तो फिर तुम बिल्कुल खामोश हो जाते। और इस किताब में खुदा अपने लोगों की इन हरकत की वजह से ऐसा नाराज हुआ कि फिर 400 साल तक खुदा ने उनसे कोई बात नहीं की। इस दौरान कोई किताब नहीं दी, इस दौरान कोई नबी, कोई पैगंबर नहीं आया। 400 साल तक खुदा अपने लोगों से नाराज रहा। अब एक दो छोटे छोटे से जुमले कहकर मैं खत्म करूंगा। अगर कहीं मेरी और आपकी जिंदगी में बेबरकती है और बदहाली है, बहुत बड़े लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर मेरी और आपकी जिंदगी में कहीं बेबरकती है और बदहाली है तो क्या मैंने और आपने कभी सोचा है कि इसका कारण क्या है? देखें, यहां तो दुनिया के हर जोड़े को खुदा ने बरकत दी है और कहा है कि बढ़ो, फूलो और फलो। और मुकद्दस पौलुस कलीसियाओं को लिखता है कि वो तो तमाम चीजें अपने मांगने वालों को इफरात के साथ देता है। मलाकी की इसी किताब में लिखा है कि मैं दूंगा और इतना दूंगा कि तुम्हारे पास जगह ना रहे। अच्छा, अगर आपकी जिंदगी में जगह है, कैल्डर साहब इस पैगाम को मैंने कहीं शेयर किया, मैं उनके घर में गया, चाय के लिए बैठे, कहने के भाई साहब अजीब गल कर छड़ी। मैं क्या की कहने लगा तुसां क्या है कि जी इन्ना खुदा देगा कि जगह ना रहे, तो देखो ना साढ़े घर च तो इन्नी जगह है, सारी जगह पई। मैं क्या एल्डर साहब जरा गौर से करो, ये जगह पई क्यों? क्या बाइबल का खुदा झूठा है? इतनी बरकत दूंगा संभाली ना जाए। वो बाजी जीनत वाला और भाई नोएल बलदेव वाला वाकया जो मैंने आपको 2-3 मरतबा इस ऑल्टर से सिखाया है, इतना दूंगा कि आप रख कर भूल जाएंगे कि कहां कहां रखा हुआ, इतना दूंगा। तो फिर अगर बेबरकती है और बदहाली है तो फिर इसका इलाज यही है, देना शुरू कर दें। और आप देकर देखें फिर बाइबल का खुदा किस तरह से आपको ब्लेस करता है, किस तरह से वो आपको देता है। और यहाँ बड़ा खूबसूरत बयान है, लिखा है देकर मेरा इम्तिहान करो, और जब तुम मुझे दोगे तो फिर यहाँ लिखा है उस देने की बरकत के नतीजे में मैं अपने आसमान को खोल दूंगा, आसमान के दरीचों को खोल दूंगा और कसरत की बरकत दूंगा। बरकत की बारिश होगी। और यहाँ इब्रानी जुबान में जो बरकत की बारिश के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है उसका उर्दू ट्रांसलेशन ये है जल थल कर दूंगा, जल थल कर दूंगा, पानी कर दूंगा। इतनी बारिश बरसेगी कि तुमसे संभाली ना जाए, इतनी बारिश होगी। तुम्हारा फल कच्चा नहीं झड़ेगा। और इसका मौजूदा ट्रांसलेशन ये होगा कि तुम पर कोई फाइन नहीं आएगा। नोट कर ले भाई, कोई फाइन नहीं आएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं साल में एक फाइन भी नहीं आएगा।
آپ دیانتدار ہو جائیں خدا کے ساتھ، گھر میں کوئی بیمار نہیں ہوگا اور آپ کا کوئی بل نہیں رکے گا۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کسی بچے کی فیس نہیں رکے گی، اور آپ کو زندگی میں کہیں شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ جب ہم خدا کی طرف سے شان اپنا ہاتھ بیٹیا روک لیتے ہیں تو پھر بلز کے حوالے سے، پھر فائنز کے حوالے سے، پھر بیماریوں کے حوالے سے، پھر کمزوریوں کے حوالے سے لائنیں لگ جاتی ہیں اور ہمیں کئی بار سمجھ نہیں آتی۔ میں پھر ڈرتے ڈرتے بچوں کو کہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بلز نہ رکیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سارے کام اچھے طریقے سے ہوں، تو پھر سب سے پہلا حصہ خدا کا، وہ آپ کا بزنس پارٹنر ہے اور آپ کو اسے دینا ہے، اور جب آپ اسے دیں گے تو وہ یقینی طور پر آپ کو اتنا دے گا، بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ آئیے